आप तो पठान लग रहे हो हमें. Your grandfather was a Muslim. He called you to accept Islam. Even after death. लेकिन हमें खुशी यहाँ हुई बहुत सारे मुल्कों के झंडे, जिसमें सऊदी अरब का झंडा भी और एक जगह पाकिस्तान का झंडा भी हमें नज़र आया. गोरों को इन्होंने लगा दिया उस पे, हलीम पे और बिरयानी पे. गोरे आके खा के जा रहे हैं. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. अस्सलाम वालेकुम. ये हमें लॉस एंजलिस में एक अंग्रेज़ अमेरिकन मिले, इस्लाम कबूल किया इन्होंने, तो हमने सोचा इनका थोड़ा इंटरव्यू लें. क्या ख्याल है? तो आर यू ओरिजिनल अमेरिकन? यस. योर फादर? My father, he's from Missouri. Missouri, Yeah. born and raised in Missouri. मिस्र? मिजोरी एक स्टेट का नाम है यहाँ पे. हाँ. अमेरिका में. अच्छा. तो जी यहाँ पे काफ़ी दूर है, तो इनकी भी पैदाइश वहीं मिजोरी की है. Okay, you accepted Islam. Yeah. How long have you accepted? It's 20 years. 10 years? 20 years. 20 years. Almost. Yeah, about 18. 18 years You're old. 18 years old. No, it's been about 8. Yeah. Oh, it's been 18 years. It's been about 18. How Close to it. old No? were you? Let's see. Well, I was losing track of the time. It might have been, it was in 2012, I believe. Wow. It's whenever I took my shahada. ये इधर लगा लो, ये हाथ पकड़ लो, इसको इधर पकड़ लो. हाँ, दाहते का ना. आप तो पठान लग रहे हो हमें. We have, नहीं, I don't think it's gonna sound good in your beard. बस इधर. just hold You it, I can think. hold. Yeah. All right. Just hold. All right. Where do you live here? Here. Here. Homeless. It means homeless. Yeah. Homeless. Yeah. अच्छा, इनसे बोलो आपने कब इस्लाम कितने साल हो गए इनको? So it's been 18-20 years since you accepted Islam. It's roundabout. It's a little bit less. I did the math improperly. So तकरीबन 20 साल पहले. जी वो मुसलमान हैं. तो क्या वजह थी, क्यों इस्लाम कबूल किया, किसने दावत दी? Who called you to Islam? What was sort of the motivation behind accepting my grandfather. My grandfather, he passed before I was born. Wow. And he was a Muslim. Wow. Yeah. Your grandfather was a Muslim. Yes. He called you to accept Islam. Even after death. Even after death. Wow. After death? उनके मरने के बाद. Yeah. I mean, just thinking about it. Just thinking about him, you know. And I met a brother, Yahya, and he ended up teaching me a little bit. But, you know, through my endeavors, I ended up meeting some good brothers, American brothers, that actually taught me what I needed to know to really feel it, you know. क्योंकि उनके इंतकाल के बाद उन्हें काफ़ी सोचा कि मेरे ग्रैंडफादर मुसलमान थे. तो फिर सोचने के बाद फिर एक भाई साहब थे याहिया, और दूसरे और दीगर मुसलमान हज़रात जो थे, तो उन्होंने उनको दावत दी और अपने ख़ानदानी जो हिस्ट्री है उसको सोच के फिर उनको कुछ उससे मुतासर हुआ, ख्याल आया, और उससे वो मुसलमान बने. What's the story of your grandfather? You know, I didn't get to really know him. Your like I said, grandfather was Muslim by born, or he also accepted? Allahu A'lam, I'm not 100% sure. Wow. I think like I said, I didn't get to know him very well, but what I do know about him, he ended up dying in a car accident. Him and some of my aunts and uncles, they were in a car accident over a bridge whenever the water was icy. So the ice sealed the car. So कह रहे हैं कि उनके ख़ानदान में चंद अफराद थे, उनमें से उनके ग्रैंडफादर भी थे जो जिनका इंतकाल हो गया हादसे में, गाड़ी के हादसे में. अच्छा. बाकी उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है कि वो पैदाइशी मुसलमान हैं या इस्लाम कबूल किया है. लेकिन जैसे फरमा रहे हैं कि इतना तो पता था कि वो मुसलमान हैं, और उस बुनियाद पर उनको कुछ शऊर हुआ कि शायद जी इस्लाम. तो जिन लोगों ने इनको दावत दी, क्या किस बेस पे दावत दी इनको? What was sort of क्या अट्रैक्टिव, क्या कौन सी चीज़ ने अट्रैक्ट किया आपको टू what were some of the conversations that you had with the people, and what particularly attracted you to accepting Islam? Well, it started because I grew up in Christianity with my grandmother, and you know what started to grab my attention is what a lot of people misconstrue about Islam and other religions. They think it's something completely different, but whenever you read the Quran, you actually find the same stories and everything else. But whenever I started to really dive in, you know,
and understand that this is a lost way of saying, okay, we messed it up all them other times. This is the last one. Whatever happens on the day of Yom Kippur is on you. Islam is closer from Christianity than other religions. Yeah, Christianity and Islam are right there neck and neck. There's just some slight discrepancies. Yes, yes. You know, Allah is a jealous God. Yes. I'm short. Yeah. जी तो So we got, you know, if you eliminate the small shirt, which is it's not small anytime you associate, but as soon as you eliminate that, then they're identical. You know. Alhamdulillah, you know, there's a lot that the brothers taught me, and you know, you're aware of the story of the 99 murders, right? That was one. Hey, that one usually brings tears. But, you know, a lot of people, even Christians, to this day, if they hit a certain point in their life and they feel like they are too far gone, they'll give up and not seek forgiveness. जी ये फरमा रहे हैं कि उनको सबसे बड़ी बात इस्लाम में अच्छी ये लगी कि पहले तो जो तसव्वुर यहाँ के लोगों का और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन, क्योंकि वो ईसाई ख़ानदान में उनकी परवरिश हुई, तो जो तसव्वुर उनके इस्लाम के बारे में था वो बिल्कुल अलग था। यानी वो ईसाई ऐसे समझते हैं कि ये मुसलमान कुछ और ही इनका दीन है, कुछ और ही इनकी बिलीफ्स अकायद हैं। लेकिन जब कुछ गौर किया और कुछ मालूमात हासिल की तो फिर पता चला कि वही अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, वही कहानियाँ हैं। और ये फरमा रहे कि सबसे बड़ा फ़र्क, सबसे एक फ़र्क है सिर्फ कि इस्लाम में शिरक नहीं है और ईसाई मज़हब में उन्होंने शिरक को अपने मज़हब में दाखिल कर दिया है। वो कहते नहीं है कि हम शिरक करते हैं, ईसाईयत का दावा ये है कि हम तौहीद परस्ती हैं, लेकिन वो हज़रत ईसा को सन ऑफ गॉड कहते हैं, तो इस्लाम इसको कबूल नहीं करता। एंड ओके, यू प्रे 5 times a day? You know, I found myself slacking a lot on that. But one thing I don't do is I never forget Allah. And Okay. the blessings, no matter how hard my times are, I'm sustained at the end of the night. I sleep well. I've not been harmed in my sleep. Okay. You know, and I owe it all to Allah in any endeavors that I've ever achieved. Okay. फरमा रहे हैं कि जिस भी हालत में मैं हूँ, मैं कभी अल्लाह को नहीं भूलता कि जो मुश्किल से मुश्किल हालत जैसे भी हो, मैं कभी कभी जहन से ये बात को नहीं छोड़ता कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, मेरे साथ देंगे, और जिस भी मुश्किलात का सामना हो, जो भी मुश्किल, तो उसमें अल्लाह ताला हमारी नुसरत फरमाएंगे। I want to give you a gift. Did you accept? Will you accept? Okay, thank you. We are from Pakistan. Alhamdulillah. What do you think about Pakistan? I'd love to go over. I'd love to go over. Hey, Okay. a lot of people were misguided to Yes. Muslims. Yes. in Yes. general. Yes. Yes. You know, Pakistan is an Islamic country. Yeah. The law of Pakistan is Islam. Constitution of Pakistan is Islam. Yeah. So the people of Pakistan very lovely Yeah. and loves you. Alhamdulillah. They love you. So I invite you to visit Pakistan. Okay, if you come to Pakistan, we will receive you and we will give you respect. Okay, my English is very weak. I am learning. Yeah. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. take. I think इसमें एक बात काबिल I am लिहाज है, trying to learn. इसमें एक बात काबिल लिहाज है कि हम दुनिया के सबसे महंगे तरीन इलाके में अभी खड़े हुए हैं। सेंटा मोनिका, यहाँ पे वेनिस, और यहाँ पे वेनिस बीच, और ये सारे जो मशहूर तरीन लोग हैं दुनिया के यहाँ पे रहते हैं। लेकिन और तस्वुर ये होता है कि अमेरिका में सब अमीर तरीन लोग होते हैं, लेकिन आप देखें गरीब बहुत हैं। और आप इन साहब को देखें, ये माशाल्लाह से इनके अंदर इस्तिकामत वगैरह है, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से होमलेस लोग रहते हैं जो अगर आप देखें तो यहीं घास पे इनका रहना सोना है, और इनमें मुसलमान भी बस हर तरह के लोग हैं, अमीर गरीब सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो सब तरह के लोग हर जगह ही होते हैं।
पाकिस्तान में भी बहुत अमीर अमीर लोग भी हैं, गरीब गरीब लोग भी हैं। अमेरिका में भी अमीर अमीर भी हैं, गरीब गरीब भी हैं। हर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को अमीर किसी को गरीब बनाया। वो आप थोड़ा सा लॉस एंजलिस भी देख लें। तो चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू मीट यू, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो इस वक्त हम न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के पास ही हैं। तो यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग तो आप देखते रहते होंगे, लेकिन हमें खुशी यहाँ हुई बहुत सारे मुल्कों के झंडे, जिसमें सऊदी अरब का झंडा भी और एक जगह पाकिस्तान का झंडा भी हमें नज़र आया। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये देख रहे हैं आप, ये है बिल्डिंग यूनाइटेड नेशन की। तो हम चलते चले जा रहे थे, वैसे ही विज़िट के लिए आए थे। हमने कहा देखें तो सही जाके। तो एक कोने में हमें पाकिस्तान का झंडा भी नज़र आया, माशाल्लाह से। तो अच्छा सा दूसरे मुल्क में जाके अपने मुल्क का झंडा नज़र आए ना, तो ज़रा ज़्यादा खुशी होती है। इनका मैं पहले इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। लंगोटी यार हैं हमारे पुराने बचपन के। तो यहाँ इनका आना जाना बहुत था, तो यहीं के नेशनल हो गए ये। इन्होंने यहाँ 2 होटल चल रहे हैं ना आपके, निहारी, और खुद ही घोटा लगाते हैं उसमें। यार ये ज़रा झंडे दिखाना शुरू करें अब इनको। देखो ये सऊदी अरब का झंडा, एक सऊदी अरब का फ्लैग देख के हमें खुशी हुई, और वो उधर पाकिस्तान का। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, फिर ज़्यादा मज़ा आता। जिंदाबाद। आप ज़रा जिंदाबाद यूनाइटेड नेशन वालों से बोलें कि ये दोनों झंडे साथ कर दें, क्या ख्याल है? बोलना पड़ेगा उनको। हाँ, उनको बोलो थोड़ा साथ कर दो यार। तो ये झंडे दिखाएं ना, झंडे मुझे तो देखा हुआ है लोगों ने। क्या मुझे देख के क्या करेंगे? वो दिखाएं पाकिस्तान का तरफ जूम करके। बिल्डिंगें देखो यार, ये ततावलून फिल बुनियान। इंडिया का बिल्कुल कोने में, इंडिया का कोने में है, इंडिया का हमसे दूर है। पहले पाकिस्तान का, इंडिया का थोड़ा आगे जाकर दिखा दें इंडिया का भी। हो रहा ओए हो नहीं, वो नहीं। इसका एयरपोर्ट इतना बिजी है, ऐसे फ़्लाइट के पीछे फ़्लाइट, इस तरह से जहाज़। आप जब जाएंगे ना लैंडिंग एरिया में, एक जहाज़ उतर रहा है, उसके पीछे दूसरा, 24 घंटे इसी तरह जहाज़ के पीछे जहाज़ लगा हुआ है। मैं तो इन लोगों से कहता हूँ, इनकी मैनेजमेंट है यार, इतने सारे जहाज़ों को हवा में इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो तो जहाज़ टकरा जाएं। लेकिन सिस्टम है, पूरी दुनिया में है। खैर, बहुत बिजी एयरपोर्ट है। तो ये इनकी कदीम इमारतें हैं, लाल रंग की ना, आपने लाहौर में देखा होगा लाल ईंटों की बिल्डिंग है। तो ये सदियों पुरानी बिल्डिंग है, सदियों पुरानी, 150-200 साल, सदियों तो नहीं कह सकते, खैर सदियों पहले तो अमेरिका दरियाफ्त ही नहीं हुआ था। यूगेंडा हाउस, क्यों यहाँ यूगेंडा के लोग हैं? उनके कौंसल जनरल हो गया, अच्छा, ऑफिस बना हुआ होता है। लॉस एंजलिस में हम गए थे, उधर पाकिस्तानी कौंसलेट भी गए, वहाँ कौंसल जनरल से हमारी मुलाकात हुई है। ज़रा बताएं, लॉस एंजलिस में आपने तस्वीरें देखी होंगी, हम पाकिस्तानी कौंसलेट गए थे, वहाँ कौंसल जनरल से मुलाकात हुई, बहुत इज़्ज़त दी उन्होंने, और माशाल्लाह मुझे लगा कि वो वाकई कंट्री के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत, और वहाँ उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मेरी तस्वीरें आपने देखी होंगी, उनके साथ काफ़ी टाइम दिया उन्होंने, हालांकि बहुत अहम मीटिंग थी उनकी, तो मैं भी इंतज़ार में उनके बैठा रहा, लेकिन बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। पाकिस्तानी जो यहाँ आते हैं तो बड़ी मेहनत और दिलजमी से काम कर रहे होते हैं। अपने मुल्क में भी कर लें ऐसे तो शायद हमारा मुल्क तरक्की कर जाए। क्या ख्याल है यूसुफ भाई? गलत तो नहीं कह रहा? यहाँ आके सारे पाकिस्तानी एक्टिव हैं। ये खालिक भाई को देखो, कराची के लौंडे लपाड़े हैं, ये हमारे साथ बचपन के खेले कूदे, इधर आके 2 होटल खोल लिए यार इन्होंने। वो खुद ही हलीम में घोटा भी लगा रहे हैं, और इतना मेहनती आदमी है ऐसा, माशाल्लाह इन्होंने बिज़नेस चला दिया यहाँ पे। अभी तीसरा भी खोल रहे हैं ना न्यूयॉर्क में। हर बंदा गोरा भी इनके होटल को जानता है। गोरों को इन्होंने लगा दिया है उस पे, हलीम पे और बिरयानी पे। गोरे आके खा के जा रहे हैं। देखा ना, सुबह होटल में गए थे। हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ, हम एक होटल पे गए, रिसेप्शन पे, जो रिहायशी होटल होते हैं ना, रिसेप्शन पे हमने, इन्होंने कहा टेस्ट करो ये मेरे होटल का नाम लो, तो हमने पूछा, उन्होंने कहा जानता हूँ। तो मेहनत की है ना, ये चांदी का, ये चांदी का ना पहले नाजायज़ है। मर्द के लिए चांदी सोना हराम नाजायज़, इनको मैंने समझाया। ये समझते खाली गोल्ड हराम है, ये कॉपर भी नहीं, सिर्फ चांदी की अंगूठी। जेवर औरत के लिए, मर्दों के लिए नहीं, ठीक है ना।
सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं। इनको अभी समझाया, इंशाल्लाह सही साइड हो जाएंगे। तो उमर भाई तो फिटफाट हमारे साथ कराची से आए हैं। ये उमर भाई, उमर शेखानी ना, चैंपियन। तो ये लोग इनका तो दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज। भाई इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी हल की हैं यहाँ पे, कभी आपको मौका मिला इंशाल्लाह हम बताएंगे बयान में। तो आज हमारी वापसी है, आज हम यहाँ से जा रहे हैं, शाम की फ़्लाइट है बहुत लंबी। कल हम लॉस एंजलिस से आए हैं 6 घंटे, 5.5-6 घंटे फ्लाई करके। अमेरिका में एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में टाइम काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, 4-4, 5-5 घंटे की फ़्लाइटें हैं। मैं कह रहा था भाई कराची से हम इस्लामाबाद 1.25 घंटे में पहुँचते हैं, 4 घंटे में तो हम पता नहीं कौन से कंट्री पहुँच जाएँ। तो बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ हर स्टेट के अलग लॉ हैं, यानी आप किसी भी स्टेट के लॉ पढ़ें तो फिर आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं यार मेरे लिए ये वाली स्टेट ज़्यादा सूटेबल है। यानी कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा आज़ादी है, कुछ में पाबंदी है, कुछ में कोई टैक्स फ्री है, कुछ में टैक्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ही बेहतरीन तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया हुआ है कि आप पूरे कंट्री में अपने लिहाज से देखें। अगर आप गरीब हैं, आपके लिए टैक्स देना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप फ़लाँ स्टेट में चले जाएँ, वहाँ टैक्स नहीं है। आप बहुत लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो फ़लाँ स्टेट में चले जाएँ, जैसे लॉस एंजलिस में चले जाएँ, वहाँ आपका ये पेट्रोल ही महंगा है लेकिन वहाँ लाइफ लग्जरी है बहुत। तो इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत, एक ज़बरदस्त मैनेज किया हुआ है। अगर आप बहुत मजहबी हैं, आप चाहते हैं आप फैमिली सिस्टम के तहत चलें, दाढ़ी रखें, शराब से बचें, तो ऐसी स्टेट्स भी हैं। मैं नेक्स्ट सफ़र में इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लोर करूँगा, ऐसी स्टेट्स जिसमें आप अगर मजहबी हैं, दाढ़ी और बीवी बच्चे और ये पूरा सेटअप आपको गाँव देहातों वाला चाहिए, ऐसी स्टेट्स हैं वो आप वहाँ जाके रहें। आप वहाँ कट्टर ईसाई लोग हैं, मज़हब को बड़ा फॉलो करते हैं ईसाई। क्या हो गया मेरे बारे में कह रहे? ये दाढ़ी इंशाल्लाह भी रखेंगे, ये हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह। तो कल कहीं म्यूज़िक लगा हुआ था, रास्ते में हम जा रहे थे, तो इन्होंने जो 2-4 स्टेप उठाए ना, तो मुझे लगा कि कोई पुरानी इनमें जो है ना कुछ है पुराना कीड़ा अभी भी। तो इनके सॉफ्टवेयर अभी थोड़े से हमने अपडेट करने हैं। अच्छा, ऐसा डांस शुरू कर दिया थोड़ा सा, इनको नहीं पता था, मैं देख रहा हूँ, तो पब्लिक इकट्ठी हो गई भाई, है ना। पब्लिक वो बड़ा वो म्यूज़िक वाला इतना जज्बाती हो गया, तो लग रहा है कोई माइकल जैक्सन से कोई। लेकिन अभी आप माशाल्लाह मैं इनकी तौहीन नहीं कर रहा भाई, ये दोस्ती यारी में, तो ये इंशाल्लाह भी इन्होंने हिम्मत की है, दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। बस आपका साथ रहा है। हाँ, जमात से नमाजें तो पढ़वा दी हमने इनको। हमारी बेगम यही कह रही थी कि कुछ हो नहीं हो, बाजमात नमाज जरूर पढ़ोगे आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है कि थोड़ा सा आप ये बस अपने जानने वालों को बोल दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए ब्लॉगर, यूट्यूबर मैं भी हूँ। जी। आपका एक वेल विशर भी है हूँ और बहुत अच्छा फ़ैन भी हूँ, बड़ा फ़ैन भी हूँ माशाल्लाह। आपकी चीज़ें भी देखता हूँ, वीडियोस भी देखता हूँ, उससे थोड़ा सा सबक आमोज़ चीज़ें भी होती हैं। लोगों ने आपको चाहा है, यहाँ पे हर गली में देखें तो इंडियन, बंगाली और नेपाली, हर कोई आपको जानता है माशाल्लाह। तो बस ये है कि एक छोटा सा मेरा एक ट्रैवल व्लॉग वगैरह बनाता हूँ मैं, और उसको मैं थोड़ा सा आपके तवज्जो से अगर आप अपने चाहने वालों को बोल दें, रॉबिन चैनल का नाम बताएं, रॉबिनहुड भाई के नाम से, रॉबिनहुड भाई, बस उसको थोड़ा सा ये करेगा। तो ब्लॉगर हैं, दुनिया में इनकी ट्रैवलिंग होती है, बहुत सफ़र किए हैं दुनिया में। वीज़ा का मसला हो, इमिग्रेशन का मसला, बड़े मसाइल हल करते हैं ये। यानी आपने किसी दुनिया में किसी कंट्री में ट्रैवलिंग करनी है तो वीज़े के बारे में इनके पास काफ़ी नॉलेज है कि भाई किस मुल्क में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, तो अपने चैनल पे डालते रहते हैं। तो इनसे आपका पर्सनल नंबर भी उसी चैनल पे मिलेगा ना। जी मिल जाएगा। और ये मेरे साथ काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, अब आप देखेंगे थोड़े दिनों में इंशाल्लाह सल्लु अलल हबीब, इंशाल्लाह ये बिल्कुल नेक्स्ट आप जब विजिट होंगे इंशाल्लाह बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। ख़ानदानी एक को तो काम हुआ ना, एक जमात से नमाज इन्होंने पूरे सफ़र में पढ़ी हमारे साथ। ये कराची से हमारे साथ हैं जी, तो उमर भाई के दोस्त हैं, तो उस हवाले से हमारे भी दोस्त हो गए, ये ठीक हो गया। अच्छा भाई, कहाँ है गाड़ी हमारी, चलें जी। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.